start with the React series. So first thing, go to the web browser and search for download Node.js for Windows. So is anyone doing it parallelly with me? We'll set up on his or her machine. Okay. So first step, you need to download Node.js for Windows. So go to open a browser and open Google and say Node.js for Windows, and this site should pop up, nodejs.org. Yeah, go over there and then search for, so for Windows, right? So scroll down. अभी तो शायद अपग्रेड यूआई नहीं, लेफ्ट राइट विंडो में आ जाओ ना। हाँ, आ गया विंडोज इंस्टॉलर MSI, उस पर क्लिक कर लो। इट विल डाउनलोड द इंस्टॉलर। once it downloads we can install this. It's downloaded, I guess. Yeah, can you run that MSI? Yes, so just next है इसमें। let it wait for, it's computing the space requirements, just checking do you have the desired space. Next, I agree, I accept, next. Okay, this is fine, C program is fine, next. Okay, next. Okay, check it, next, install. If it asks for any permissions, do a yes. Okay, so it will start the installation. Yeah, once done, finish. So once you have finished, then check the command. You need to check for verification that node has been installed or not. Open the left window, open the word screen parallelly. Yeah, scroll down. Yeah, now towards the right, open your CMD. Where the browser is open in the right screen, open the CMD over there. Type CMD and do a Windows right. विंडोज राइट दबाओ, बड़ा करके इसको बड़ा मैक्सिमाइज कर लो। लेफ्ट चला गया, मैक्स ओके ठीक है, एज यू प्लीज। या so now type node-v, node space -v, enter. So this is the version of node which you have installed, and now do a npm-v. Perfect, all good. Now scroll down left window mein. Okay, now everything is good. If you all get some error, so we'll check this later on. Now go to your hard disk and make a folder in which you want to store the React projects. If you have any existing folder or you want to make a new folder. Are you documenting all your front end work into a single folder or you want to make a new for React? Okay, make a new folder then. So make React JS sessions. No, never give a space while creating a folder. Give a hyphen React JS sessions. Okay, whatever name you want to give. Even this is fine. Okay, perfect. Now open VS Code and open this folder over there. If you have the option of right click and opening it,
You open it from the right click. See, show more options. You have it. Open in VS Code. Not there. Let it be. Open the VS Code. Go to File and New folder. Open folder rather. Open folder. Open folder. You open that folder. Hello. Hello. Okay. Done. Very good. Now check the next one now. Okay. Done. No, once you are over here, perfect. So open the terminal now. So you will observe. No, terminal is already there. Just have to expand it. Ma'am, see, is my screen visible to you all? Stop sharing, Padme. Terminal is always on 24/7 in VS Code. Is my screen visible to you all? Now, so this terminal is already there. You have terminal. ये नीचे रहता है हमेशा. इसको सिर्फ नीचे से ड्रैग करना हो नीचे. Just take the mouse over here and just drag it up. Terminal is already there open. Now can you show me your screen and drag this? Now can you share your screen? Yes, miss, share your screen. Yes. So ये हटाओ बाजू में शेयर स्क्रीन को हटाओ. हाँ ऊपर ले लो उसको ऐसे. आगे मूव दिस शेयर. स्टॉप शेयरिंग को राइट में मूव कर दो. नो नो मूव इट टुवर्ड्स द टॉप एनीवेयर एल्स. Click and drag it anywhere else. Okay, hide it. Okay, now you are in the proper console. So you should know now you are in which location? P205 React.js folder, correct? So whatever command you'll fire on this folder. Okay, now go to your Word file. विंडोज राइट करो, बड़ा करो, मैक्सिमाइज करो, विंडोज राइट करो. विंडोज बटन और राइट बटन. नहीं नहीं, आई वांट द VS कोड एंड दैट वीडियो, दैट वर्ड फाइल. विंडोज बटन और राइट एरो, बस कीबोर्ड का. सिंपल है बहुत. विंडोज और राइट. हाँ वेरी गुड. नाउ ओपन द VS कोड. और विंडोज और लेफ्ट. हाँ ऑलरेडी लेफ्ट पे है, ठीक है. स्क्रॉल डाउन ऑन द डॉक्यूमेंट एंड चेक नेक्स्ट क्या है. यहाँ तक तो आप आ गए. यहाँ तक भी आप आ गए, ठीक है. आपने फोल्डर भी बना दिया, ठीक है. मेक अ फोल्डर वॉट एवर नेम. ओपन दैट फोल्डर, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन इंस्टॉल दीज एक्सटेंशंस जो मैंने नीचे इमेजेस डाले हैं. ES7 रिएक्ट रिडक्स है, ठीक है. सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स है. ये इंस्टॉल कर लो, ये काम आएंगे. तो लेफ्ट में विंडो में है ना वो 4 रेक्टेंगल है, 4 स्क्वायर्स है, उस पर क्लिक करो और ये सर्च कर लो. ES7 रिएक्ट रिडक्स फ्रॉम DSN नच देयर. रिएक्ट रिडक्स टाइप एंटर. यही है ना. हाँ ठीक है. इंस्टॉल इट. यस. ओके. ऑल्सो इंस्टॉल सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स. फ्रॉम बुर्क हॉलैंड. Install it. It's come. Install it. Okay. Is there anything else which is there? Scroll down.
Yeah. Uh, Auto rename tag. Yeah. Auto rename tag. Yeah. Install. Material icon theme also if you want you can import. Material icon theme. It's come. Yeah. From Philip Keith. Yeah. Okay. Done. Very good. Now go back to your. Now see. Now what you have to do is there are many ways of creating a React project. The simplest and the easiest way I'm telling you all. Okay. Forget it. Just click outside. Click that material icon theme. Close this right window. Cross. Click on the cross. No, no, no. In the VS Code, yeah, click on the cross. Now scroll up, 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 up. I want you to go up. Yes. Now, yeah, hang on over there. So now, if you want to create your first project, go to the terminal and type that command npm create wheat at the rate latest. Wheat at the rate latest. Okay. Enter. What is it telling? Okay. If it is showing unauthorized access, very good. Just scroll on the document a little bit up. Further, further. Yeah. Copy this red command. Copy this. Yeah. Copy this command. Have you copied it clearly? Copy it. And with the search, open a PowerShell. PowerShell. Yeah. Search for PowerShell and open it. Yeah. Windows PowerShell. Yes. Click on it. Paste this command. Enter. Very good. Close this PowerShell. Close your terminal. Cancel the terminal. Yeah. Now drag the terminal again. Now open a fresh terminal. Perfect. And now the up arrow key. Up arrow key to previous command. Just use the up arrow key. Hit enter. Yes. Okay. So I've put all the documents in place. I'm not able to see anything. Yeah, it's okay. Yes. Yes. Enter. And now it will ask you for your project name. Okay. So you can say project one. Yeah. Type over. Type. Just keep typing. Project one. Yeah. As of now, just say project one. No, 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 no. Number. Project one. Yeah. Just this is sufficient. Enter. Now from your down arrow key, choose React. Enter. Down arrow key, choose the first JavaScript. And first JavaScript. Yes. Enter. That's it. Okay. Okay. Maximize this. Yes. So once you have done this now, so first thing first. Now you are in your root folder, right? 204 React. And what is the project you have made? So CD and go to that project folder now. CD tab. Your tab. No, no. Just only CD. Just no. Remove everything. CD. Give a P and tab. Yeah. Enter. So now you have come into which? Keep on checking your path. Now you are in project one. Now you have to install all the boilerplate code of your React, like how we had in Spring Initializer, all the dependencies. So do a npm install or npm I for shortcut. Enter. So this now will take around 10-20 seconds and will set up your React.js project for you. There are many ways of installing, creating a React project. In this time of, this is the most easiest and fastest way.
So this is now downloading all the dependencies which I need. So how we have a pom.xml. Similarly, there's a file over here also, which will list down all the dependencies which we have installed. And then later on, if you need any other dependency, you can add that also. Okay, done. And now to run npm run dev. npm run dev. Enter. Okay. Now to open on the browser, control click on the URL, HTTP localhost. Control click. Control click, yes. And now the React project is live and it's running like this on your machine. Okay. Now go to your React project, expand your project one. Okay. So if you see that file over there, package dot expand the src. Okay. So go to package.json and scroll down, up. Line number 13 and 14. As of now, you just have installed these two dependencies, React and React DOM. As and when your application will scale, the dependencies will increase over here. So all the dependencies which I mentioned over here, when you do npm I, it installs over there. Have you used pip command in Python? Pip. So if you want to install any dependency in Python, we have to use pip, right? Similarly, we have to install dependencies in the React also. The command is different, not pip. Okay. We'll do a npm I. We'll do a npm I. Okay. Now coming back to your application. Okay. So if you expand the src, you see the top three files: app.css, app.jsx, index.css. First thing first, clear all of them. Go to app.css, Control A, backspace. Delete it. Go to the next file, app.jsx, Control A, backspace. And go to index.css, Control A, backspace. Okay. Now go to app.jsx, and now we will create our own component. Do a RAFCE, React Arrow Function Component. RAFCE. Yeah, second one. But that's it. Okay, now do a save all. Go to file option and do a save all. File option and do a save all. Yeah. Okay, done. Save all, right? हो गया ना? You've done the auto save क्या? ठीक है. Now go to your browser and you will see that the changes which we have made on the browser. So all that boilerplate code has gone and we have just got simple app. Now how this flows, okay? How this React project flows. Okay, now you can stop sharing. So are people able to make such a basic React project, Hello World project? Now if you want to, hang on, can you reshare? So if you want to make any changes, what you need to do is, so when you run the code, what is it showing on the browser? Only app. This app is reflecting from line number 4. So if you change this app, line number 4 app, to welcome to React.js and do a save, you will see this. Do a Control S and do a Alt Tab. So it is reflecting from here. Okay. Now stop sharing. Now see, I'll tell you what exactly is happening behind the scenes. अब इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो देखो कैसे होता है. Am I audible to and visible? Now pay attention and understand this, what is happening here. Is my VS Code still visible? Visible, right? So you all made a folder by whatever React application 204 React, right? In that we made a project 1.
In that project one, we had these files. So we expanded SRC. So the page which you are seeing on the browser, that is a landing page of your application. The page which we see over here is the landing page, right? What is the landing page of an application by default known as? Index.html. It's called as index.html. So you should have a index.html somewhere. Can someone spot it? दिखा? So index.html दिख जाता है ना, वहां से अपना खेल शुरू होता है. तो जो मुझे पेज दिख रहा है, the page which I am seeing on the browser is which page? Index.html. Now here, so if you see, index.html is using a module, right? So it is giving all the power of the manipulation to which script file? Main.jsx, and it is giving one entry div element. So main.jsx will create the HTML component and set it to the inner HTML of get element by ID root. So I have one parent div element. So whatever this file will return will be the inner HTML of this, right? So now go in which file? So ये एक डिटेक्टिव सीरियल जैसा है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है अभी. तो मैंने आपको एक सुराग दिया. शुरू कैसे करते हैं हम लोग? इंडेक्स में आ गए. वहां पर हमने कल ही पढ़ा था एक्सपोर्ट. तो इसके लिए इंपोर्ट होना जरूरी है. एंड इंपोर्ट के प्रिविलेजेस लाइसेंस तब मिलते हैं जब आप टाइप मॉड्यूल होते हो. तो ये जो फाइल है src main jsx, ये मॉड्यूल है, मतलब ये मेरे इंडेक्स की सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. अब मेरे पास अगर 1000 JS फाइल्स भी होंगे, वो सब किसको रिपोर्ट करेंगे? मेन को. अब मेन की तलाश में निकलो. मेन मिला. अब मेन ने क्या किया देखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी. कौन सा? रूट ना. और उसके अंदर रेंडर कर दिया है ये सारे. तो उसने अभी रिएक्ट में क्या होता है, ब्रिक बाय ब्रिक हम बनाते हैं. तो अगर एक बिल्डिंग है, उसका स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एक ब्रिक है. समझ में आ रहा है? तो इन अ लेमैन लैंग्वेज दैट बिल्डिंग इज अ ग्रुप ऑफ ब्रिक्स. So some buildings take 100 bricks, some take 1000, some take million, some take billion. But end of the day, ब्रिक ही है ना? तो वो जो सेंट लोग रहते हैं ना, जिनको मोह माया नहीं होती, वो उसको उस एंगल से देखते हैं. तो उनके लिए एक लैम्बोर्गिनी एक स्टील का पतरा ही है. तो उससे क्या खुशी लेना, तो वो त्याग देते. तो एक महल क्या है उनके लिए? एक ब्रिक का ढेर है. तो उसमें क्या सेटिस्फैक्शन होने का? The target of life should be much bigger than that. So they do not, उनका वो लाइफ का गोल नहीं होता है कि एक आलीशान महल बने या एक आलीशान कार मिले, क्योंकि उनका देखने का एंगल अलग है. सो रिएक्ट क्या करता है, एप्लीकेशन को कंपोनेंट बाय कंपोनेंट बिल्ड करता है. तो कंपोनेंट रिएक्ट का एक ब्रिक है. क्या है? तो अभी आपके पास जितने ब्रिक्स होंगे, आपका एप्लीकेशन उतना स्केलेबल होगा. तो यहां पर उन्होंने ऐप ये कंपोनेंट बनाया है. क्या बनाया है? और जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो, आपको उसको ऐसे इंक्लूड करना पड़ता है सेल्फ क्लोजिंग टैग में. और कंपोनेंट हमेशा पैस्कल केस में बनेगा. किसमें बनेगा? पैस्कल केस. तो ये मेन का सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. इंडेक्स के लिए कौन सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? मेन. मेन ने फिर सारे कंपोनेंट्स के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया है. कौन? तो मेन को जब भी कोई कंपोनेंट लगेगा, वो किससे मांगेगा? ऐप से. इंडेक्स को जब भी कुछ लगेगा रेंडरिंग करने के लिए, वो किससे मांगेगा? मेन से. और मेन को जब भी कोई कंपोनेंट चाहिए होगा, वो कंपोनेंट का जो टीम लीडर है, कौन है, उसको बुलाएगा. तो अभी आप उसने क्या इंक्लूड किया है? ऐप कंपोनेंट. तो ऐप कंपोनेंट मतलब ऐप डॉट जेएसएक्स. कंपोनेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? JSX, जावास्क्रिप्ट एंड XML उसका एक्सटेंशन है. तो अब किसकी तलाश में निकलो? मिला. और उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें जो भी आप अभी देखो, अब एक कंपोनेंट के, ओके, सो अब ऐप डॉट इसमें आ गया मैं.
तो ये मैं कंट्रोल ए करके कचरा निकाल देता हूँ, ठीक है, जैसे अभी अमुन ने किया था। और नया कंपोनेंट बनाने के लिए क्या है, RAFCE, क्या है RAFCE, क्या है वो, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, क्या है ये। और देखो यहां से कितने एलिमेंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक, इसके लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, क्या है। तो इट वाज अ गुड थिंग दैट वी डिड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड मॉड्यूल यस्टरडे, अभी काम आएगा अपने को, ठीक है। तो कंट्रोल एस हो गया। सो अब वापस कहानी में रिपीट करता हूं, खेल शुरू कहां से हुआ, इंडेक्स ने क्या बोला, मेन को जाओ, मेन में गया, मेन किसको लोड कर रहा है, ऐप में आया, ऐप ने क्या लोड किया, सिर्फ ऐप, तो कंट्रोल एस करता हूं मैं। और आई विल स्टॉप, कंट्रोल सी आके स्टॉप योर एप्लीकेशन, कंट्रोल सी करना टर्मिनल में आके, इट विल स्टॉप ऑल योर रिंग, वो पूछेगा डू यू वांट टर्मिनेट, से यस। नाउ वेयर एम आई एम इन विच प्रोजेक्ट, so you should know I am in which project, I have how many projects over here, project 1, project 2, project 3, अभी मैं कौन सा कंसोल पे हूं, पर मुझे रन कौन सा करना है, प्रोजेक्ट 1, राइट। तो रिवर्स आने के लिए cd डॉट डॉट, क्या है, cd डॉट डॉट, एक कदम पीछे आ जाएंगे। अभी कहा गया मैं, इसमें आ गया। अब जो प्रोजेक्ट रन करना है पहले उसमें cd करो, तो cd गिव अ p एंड टैब, आ गया उधर। रन करने के लिए npm run dev, रन करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया ना डिपेंडेंसीज, आ गया। कंट्रोल क्लिक करो इस पे, तो ब्राउजर पे खुल जाएगा, देखो पीछे खुल गया। और क्या लिख के आ रहा है, तो ये ऐप कहां से आ रहा है, ऐप आ रहा है जो मेन ने किससे किससे लिया, ऐप से लिया। ऐप ने सिर्फ क्या किया, ऐप डॉट जेएक्स डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहां पर कर देता हूं वेलकम टू रिएक्ट जेएस, कंट्रोल एस, एज आई डू अ सेव, इट डज अ रीरन बिहाइंड द सीन, डेव टूल्स जैसा। बार बार npm रन डेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सेव किया, अगर कोई एरर्स नहीं है तो ये बताएगा कि आपने कितने बार सेव किए। नाउ आई डू कंट्रोल एस 3 टाइम्स बैक टू बैक, ये काउंटर बढ़ते जाएगा, ये इंटू 2 है ना, तो मैंने कितने बार सेव किया, 5 बार सेव किया, और मेरा प्रोजेक्ट रेंडर हो गया, ये आ गया स्क्रीन पे। समझ में आया तुम लोग को पूरा खेल कैसे शुरू हुआ। तो स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, गोज टू मेन, एंड देन मेन के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, ऐप कंपोनेंट, और ऐप ने ऐसा कर लिया। अब आप जितने चाहो उतने खुद के कंपोनेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। दिस इज व्हाट रिएक्ट जेएस इज इंटेंडेड फॉर, टू मेक योर एप्लीकेशन into smaller units called as components. So now if you want to make your components, so एक basic etiquette से make a folder by the name components। क्योंकि मेरा ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसके लिए फोल्डर मैंने बनाया था, तो दिख रहा है आपको, आपके उसमें नहीं दिख रहा होगा। तो एसआरसी में जाना है, एक नया फोल्डर बनाना है, किस नाम से, कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट यू मेक योर कंपोनेंट्स इन द कंपोनेंट्स फोल्डर। वी मेक द कंट्रोलर इन द कंट्रोलर पैकेज, वी मेक द सर्विस क्लासेस इन द, सिमिलरली वही सही स्ट्रक्चर है क्लीन कोड प्रैक्टिस में। तो कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बनाओ, और फोल्डर के नाम में कोई कैपिटल नहीं होगा, फोल्डर का नाम ऑल स्मॉल, कोई हाइफन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है। अब मैं वहां जाके एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूं, तो कंपोनेंट मतलब एक जेएसएक्स फाइल, कंपोनेंट मींस जेएसएक्स फाइल, ठीक है। सो आई मेक अ टेस्ट कंपोनेंट, जस्ट मेक, एंड कंपोनेंट विल ऑलवेज बी इन पास्कल केस, तो टेस्ट विद अ कैपिटल टी। अगर ये होता माय टेस्ट कंपोनेंट, तो एंड एक्सटेंशन होगा डॉट जेएसएक्स, क्या होगा, डॉट जेएसएक्स। जैसे ही जेएसएक्स फाइल बनाए, बाकी काम को साइड में रख के इसको पहले आरएएफसी करना हमेशा, बाकी काम छोड़ देना, आरएएफसी इसको कर लेना। तो अभी आरएएफसी हो गया। अब इसमें लिखा है टेस्ट, ओके, सो ठीक है, इसमें मैंने डिव डाल दिया, ठीक है, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। तो जब मैं ये कंपोनेंट को लोड करूंगा तो ये डिव लोड हो जाएगा, और वो डिव लोड कर देगा। सो कंपोनेंट बन गया, कंट्रोल एस, इसको मैं कहा जाता हूं, ऐप में कहा जाता हूं,
तो ये div के नीचे मेरा कंपोनेंट लोड कर दूंगा। तो अब देखो, जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके दो पार्ट बनेंगे, रिटर्न, ये रिटर्न का ऊपर का पार्ट, रिटर्न के नीचे का पार्ट। जो भी आप रिटर्न करते हो कंपोनेंट से, आपको एक ही पेरेंट रिटर्न करना है। अगर आप दो कंपोनेंट रिटर्न करते हो जो सेम सिबलिंग्स हो, जैसे ये समझो अभी मैंने कुछ भी लिख दिया हाय, नाउ व्हाट इज दिस कंपोनेंट रिटर्निंग मी? टू एलिमेंट्स, div and they both are siblings। तो रूल क्या है? कंपोनेंट विल रिटर्न ओनली वन सिंगल पेरेंट, वन सिंगल। तो इनको एक div में डाल दो। एक कंपोनेंट हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है? तो अगर दो है तो पेरेंट उनका एक होना चाहिए। सो अब मैंने ऐप में क्या कर दिया, वेलकम टू रिएक्ट जेएस, और एक h1 है हाय, कंट्रोल एस करता हूं मैं, तो देखते हैं हाई भी आ गया। उसके नीचे मुझे मेरा टेस्ट ऐप को लेना है। तो देखो मेन ने ऐप को कैसे डाउनलोड कैसे किया था, लिंक याद है? सेल्फ क्लोजिंग टैग में, और कंपोनेंट का नाम है ना, ऐप इज द JSX फाइल ना। तो ऐसे ही मुझे अभी ऐप में किसको करना है, माय टेस्ट। तो कैसे करेंगे, माय टेस्ट, और ये जो है ना क्यूब जैसा आइकन आया है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। देखो लाइन नंबर 2 पे कुछ है क्या? अब मैं क्लिक करता हूं, तो जब भी आप कोई सेल्फ क्लोजिंग है, क्या ये सेल्फ क्लोजिंग है? याद रखना, क्लोज करना भूलना मत। और ये सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेल्फ क्लोजिंग होंगे। तो जब whenever you are using any component, you should first import it. Now if I do a save, what happens now? It will show me welcome to React.js, will show me this h1 and will load my test component, and my test component में क्या लिखा है मैंने, सिर्फ best wishes। So if I do a save all, I have changed multiple files now, I do a save all and I go to the browser and it shows me that in your component you can make anything, you can make anything। So if in my test component, what did I make? A div tag। ओके, इस div tag के साथ आई ऑल्सो वॉन्ट अ बटन, आई ऑल्सो वॉन्ट अ बटन। सो मैं यहां जाके बोलता हूं बटन। एरर क्यों आ रहा है, बोलो भाई? हाँ, एक कंपोनेंट सिर्फ एक पेरेंट रिटर्न करेगा। अभी है देखो, दोनों सिबलिंग हो गए, दोनों एक ही लेवल पे आ गए ना, तो ये अलाउड नहीं करेगा, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको, इनको एक पेरेंट में डाल दो। तो आज हमारा डे 1 है, तो हम किस में डाल रहे हैं इसको, div में डाल रहे हैं, ठीक है? अब कौन है जिसका विजुअलाइजेशन पावर इतना स्ट्रांग है कि वो मुझे इस का डॉम ट्री बना के दिखा दे? देखो इसका डॉम ट्री कैसे बनेगा, स्टार्ट खेल कैसे करते हैं, index.html से। तो ये पेज लोड हो रहा है ना, तो ये जो पेज दिख रहा है आपको, कौन सा पेज लोड हो रहा है, ये इंडेक्स है ना भाई। अगर कोई भी हमने कोई फाइल को नाम दिया है क्या, इधर सिर्फ पोर्ट दिया है, तो बाय डिफॉल्ट किसको लोड करता है वो, इंडेक्स को। तो इंडेक्स पे आ गए, तो इंडेक्स में डॉम बोले तो डॉक्यूमेंट। सो आई ओपन अ पेंट स्क्रीन साइमल्टेनियसली, ओके? So I open a paint screen simultaneously. I right shift it, and now in the left portion I'll take my this, okay? So let's start। ये index पेज है, ये कहाँ से आ गया? तो मुझे लेफ्ट में चाहिए था ना, और पेंट यहाँ चाहिए था, ठीक है? अब ठीक है, ओके। सो फार सो गुड। सो इंडेक्स HTML में सबसे पहला रूट कौन आ गया भाई? नहीं, डॉम ट्री आता है ना अपना, डॉम डॉम ट्री बोले तो आप लोग ट्री बनाया ना DS के अंदर, ये रूट है क्या, ये रूट है, मतलब ये अपना HTML है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, HTML से, ठीक है? तो HTML के चाइल्ड कौन कौन है अभी? हाँ, HTML के चाइल्ड हेल्ड और बॉडी है, क्या बोल रहे तुम लोग ऐसा? अरे HTML अगर रूट है तो उसका चाइल्ड कौन है?
हेड है, हेड में कुछ होता नहीं है, तो उसको हम डाल देंगे कोने में। मेन खेल किस में होता है? बॉडी में। तो ये उसका चाइल्ड कौन हो गया? ये दो चाइल्ड हो गए उसके। फिर हेड का चाइल्ड कौन है? मेटा और लिंक, है ना? है क्या नहीं? बस उसको देखते आप बनाते जाओ, चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड। तो हेड का चाइल्ड कौन है? मेटा और लिंक है। अब बॉडी का चाइल्ड कौन है? कौन है बोलो? मेटा है और ये लिंक है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इस ख्याल पे छोड़ दो। अब बॉडी पे आ जाओ, फोकस बॉडी पे करते हैं। बॉडी में आ गए, बॉडी में कौन है? एक डिव है। तो बॉडी का चाइल्ड कौन हो गया? उसका आईडी क्या है? दो चाइल्ड है बॉडी के। कौन है दो चाइल्ड बॉडी के? हाँ, एक स्क्रिप्ट भी है ना। जो टैग होगा वो जो टैग होगा वो चाइल्ड होगा, समझो। तो ये कौन है? ये कौन आ गया? आई ड्रो अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कौन हो गया भाई? डिव हो गया, और ये कौन हो गया? स्क्रिप्ट। डिव का आईडी, डिव जिसका आईडी है रूट, ठीक है ना? ये डिव है ये। और ये कौन है फिर? स्क्रिप्ट है। ओके, अब आ जाओ। अब रूट, ठीक है। तो इस रूट को किसने मॉडिफाई किया है? मेन डॉट जेएसएक्स ना। तो अभी जाओ मेन डॉट जेएसएक्स में। उसने क्या बोला है? मैंने ये आईडी लिया और उसमें अपेंड कर दिया, किसको? ऐप को। तो अभी ऐप में जाना पड़ेगा। तो ऐप डॉट जेएसएक्स में गए। उसने क्या किया? एक और डिव बनाया है, राइट? तो अभी रूट को क्या, एक और डिव, इसका चाइल्ड एक और डिव है ना। क्या नाम उसका? ओके, उसका नाम दे देता हूं मैं। आईडी इक्वल्स टू रूट वन। ठीक है, मैं कुछ भी दे रहा हूं मेरी तरफ से। ITP1 दे रहा हूं, कुछ भी दे रहा हूं। तो ये जो डिव है उसका आईडी क्या है अभी? ITP1। तो एक एक लेवल बढ़ गया ट्री का। यस और नो? तो ये एक और डिव ऐड हो गया जिसका आईडी है ITP1, करेक्ट? अब उस डिव के चाइल्ड कौन कौन है? उसका एक और डिव है, एक H1 है और एक कंपोनेंट है ना। तो इसके तीन चाइल्ड हो गए। इसके चाइल्ड कौन है? एक H1 है, एक डिव है, एक H1 है, और वापस अभी एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट को तो होल्ड कर लेते हैं, इनको बना देते हैं दोनों को। तो डिव है, तो इसका आईडी और देता हूं मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ITP2। क्या हो गया? ओके, ठीक है। ये सुनो। तो इसका चाइल्ड कौन है इस डिव ITP1 का, बोलो? एक डिव है ये, इसका आईडी क्या है? ITP2 ना बाबा। वन का चाइल्ड टू है ना। और क्या है उसके अंदर? एक H1 भी है, सही है। ओके, अब एक और मैंने क्या ओपन किया है? माई टेस्ट। तो माई टेस्ट में चला गया। तो माई टेस्ट में वापस एक डिव है। तो वो डिव इसका चाइल्ड है ना, कि माई टेस्ट की जगह पे खुल रहा है ना वो। किसकी जगह पे खुल रहा है वो? ये क्या हो गया इधर? माई टेस्ट की जगह पे है ना। तो माई टेस्ट ऐप, यहाँ पर ऐप था ना। तो ऐप की जगह पे क्या आ गया अभी? एक और डिव आ गया, राइट? क्या नाम है उस डिव का? क्या डिव का आईडी है? तो ये एक डिव आ गया जिसका आईडी है ITP3। अब उस डिव में क्या है? एक डिव है बेस्ट विशेष, एक बटन भी है।
एक डिव है बेस्ट विशेस का और एक क्या है, बटन है, राइट। तो एक डिव है, लेट से इसको मैं आईडी करता हूँ ITP4, ITP, ठीक है। तो एक डिव है जिसका आईडी क्या है, ITP4 है, और एक बटन है। ये पूरा का पूरा खेल ऐसा अंदर के अंदर बनते गए, कंपोनेंट से कंपोनेंट, कंपोनेंट से कंपोनेंट, ठीक है। इसके चाइल्ड है ये। सही है। अब इस ट्री का प्रूफ क्या है देखते हैं। तो इसको सेव ऑल करता हूं मैं, सब कुछ रेंडर बराबर हो गया। देखते हैं कुछ कोड पे एरर तो नहीं आ रहा, एरर नहीं आ रहा। अब इसको लेता हूं मैं लेफ्ट की तरफ, और ये मेरी जो ट्री है इसको लेता हूँ राइट की तरफ, ठीक है। अब राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका एलिमेंट्स चेक करते हैं। अभी बॉडी में जा रहा हूँ, बॉडी कितनी चाइल्ड रहेंगे, दो। कौन, एक डिव आईडी रूट वाला और एक स्क्रिप्ट। आ गए, डिव आईडी रूट वाला और एक स्क्रिप्ट वाला। अब रूट में जाता हूँ तो क्या है, ये एंड है क्या, इसका आगे पीछे तो और कुछ नहीं है क्या। हाँ ओके, अभी डिव को एक्सपांड करता हूँ तो क्या होगा, इस डिव का एक चाइल्ड आएगा, डिव ITP, इसका एक चाइल्ड है डिव, उसको एक्सपांड करूँ तो तीन चाइल्ड है उसके, दिख रहे। डिव है H1 है, वापस डिव है ITP3 वाला, उसको एक्सपांड करूँ तो उसके दो है, डिव ITP4 और बटन। तो ऐसे बिहाइंड द सीन्स क्या होते जाता है, एक डॉम ट्री बनते जाता है। जो ब्राउजर पे दिख रहा है ना, वो तुम्हारा एक्चुअल डॉम ट्री है, फिजिकल डॉम ट्री। और जो रिएक्ट बनाता है बिहाइंड द सीन्स, वो एक वर्चुअल डॉम ट्री है, वी डॉम क्या बोलते हैं इसको। रिएक्ट क्या करता है, वर्चुअल डॉम ट्री बनाता है। और जब हम रिफ्रेश करते हैं ना पेज को, तो वो री रेंडर करता है, क्या करता है, और वही कंपोनेंट को ऐड करता है एक्चुअल डॉम में जो मॉडिफाई हो गए थे। तो अगर मैंने यहां पर सिर्फ एक कंपोनेंट मॉडिफाई किया है, अगर मैंने सिर्फ ये बटन जो है इसका टेक्स्ट चेंज किया है, तो ये मेरा एक्चुअल डॉम है, ठीक है। ये एक्चुअल डॉम है, समझो इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत काम आएगा रिएक्ट में। सो और रिएक्ट पैरेलली क्या करता है, मेंटेन एक वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम में कौन सा एलिमेंट मॉडिफाई हुआ है मैंने अभी सिर्फ, तो ये हो गया डर्टी कंपोनेंट, क्या हो गया। फिर रिएक्ट क्या करता है, टैली करता है एक्चुअल डॉम और वर्चुअल डॉम में डर्टी कंपोनेंट कौन सा है। ये कंपोनेंट डर्टी हुआ क्या, इसको रेंडर मत करो। ये हुआ क्या डर्टी, इसको रेंडर मत करो। तो फास्टर रेंडर होता है, तो पूरा पेज रिफ्रेश नहीं करता है वो सिर्फ उस कंपोनेंट को रिफ्रेश कर देता है बस, जो चेंज हुआ है। तो इसके लिए एप्लीकेशन लोड्स फास्टर कंपेयर टू द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ वेब डेवलपमेंट इन रिएक्ट, बिकॉज वो माइक्रो लेवल पे जाके चेंज करके उसी कंपोनेंट को फास्टर को वर्चुअल डॉम से एक्चुअल डॉम से सिंक कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, बिहाइंड द सीन्स वो एक डॉम ट्री मैनिपुलेट करते जा रहा है। और मैंने आपको उसका एग्जांपल भी दिखाया इधर। तो ये आपको विजुअलाइज करते रहना है। तो अब इसमें एक चीज और बताने की मुझे, जो मैं नॉर्मली बताता नहीं हूँ फर्स्ट डे को, बट आई गेस यू आर कैचिंग इट फास्टर। सो यहां पर देखो, ऐप ने किसको लोड किया, तो ऐप क्या कर रहा है, एक नया डिव ऐड कर रहा है, जबकि ये डिव का कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है। ITP1 का कोई वैल्यू ऐड हो रहा है क्या, ITP1 सिर्फ किसका रोल प्ले कर रहा है, पेरेंट का। तो रिएक्ट ने एक रिएक्ट फ्रैगमेंट निकाला है, क्या निकाला है। तो आप डायरेक्टली अगर आपको, क्योंकि सिंटैक्स क्या बोलता है, यू शुड सेंड अ पेरेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सिंटैक्स पूरा करने के लिए डिव लगा देते हैं। और डिव क्या करता है, डॉम ट्री में एक रूट, एक लेवल बढ़ा देता है। डॉम ट्री में क्या कर देता है, एक लेवल। अब वो नहीं बढ़ाना है आपको, तो आप एम्प्टी ब्रैकेट यूज कर सकते हो, रिएक्ट फ्रैगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो अभी उसमें वो डिव निकल जाएगा, अभी सिर्फ ये डिव आ जाएगा। तो सेम थिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये देखो, ये डिव क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ पेरेंट बनने के लिए रखा था उसको मैंने।
तो इसको अभी निकाल दूंगा मैं, तो अब ये सिर्फ क्या काम करेगा, तो अब मेरे उतने डिव कम हो जाएंगे, उतने मेरे डिव, तो कौन से दो डिव निकले हमारे, ITP1 और ITP3 ना, तो ये 1 और ये 3, तो ऐसे वो उनको कम कर देगा। अभी देखो दोबारा ये जो डॉम ट्री रिफ्रेश हो करेगा, देखो ऐसे बॉडी आया, डिव, डायरेक्ट ये आईडी आया H1, तो अभी देखो कितना फास्ट हो गया, 1 और 3 गायब कर दिया। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या करता है, वो एक एक्स्ट्रा लेवल ट्री में ऐड नहीं करता है, समझ में आया, डायरेक्ट कंपोनेंट को ही पेस्ट कर देता है। ओके, सो अभी ये जो है डायरेक्ट इसके चाइल्ड बन जाते हैं, फिर हम डायरेक्ट ये इसी के चाइल्ड बन जाते हैं, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट एक इसके चाइल्ड बन जाते हैं। और ये भी डिव निकाल दिया मैंने, ये भी निकाल दिया ना, तो ये भी निकल जाता है, और डायरेक्ट फिर ये लोग भी क्या करते हैं, उसी के ही चाइल्ड बन जाते हैं। तो ये भी इसका चाइल्ड है और ये भी उसी का ही चाइल्ड है। तो अभी मेरा जो डिव आईडी रूट है उसके चाइल्ड की चाइल्ड कहते हैं, ITP2 है, H1 है, ITP4 है और बटन है ना, ये तो निकल गया ना। तो मेरे डिव का उतना लेवल कम होते जा रहा है ना, तो अभी मैं रूट को एक्सपांड करता हूं तो सब उसके अंदर आ गए ना, डिव H1 डिव बटन, डिव H1 डिव बटन। तो जो इतनी लंबी मेरी ट्री बन रही थी वो छोटी हो गई ना, अभी लेवल कम हो गए ना, ये दोनों इधर ही आ गए ना इसी लेवल पे। इट्स एज गुड एज ब्रिंगिंग देम एट दिस लेवल ना। अरे हाँ क्या ना, क्योंकि ये तो यार इसका प्रूफ देखो इधर है, तो रूट के डिव H1 डिव B1, तो ये ऐसा था। तो इतना पार्ट हम कट कर सकते कि भाई ये निकाल दो बस, और इन कंपोनेंट्स को ऊपर ही ले लो फिर, ठीक है। और फिर ये कंपोनेंट्स ऊपर आ गए तो उसी के रूट में आ जाएंगे ना फिर ये जो। सो रिएक्ट फ्रैगमेंट समझ में आया, these are all interview sort of questions, okay, what is their advantage, so they all are now reporting to this just by removing the, so just I did one fine tuning and my tree becomes a much more shorter, getting what's happening behind the scenes. And you all know how to create a basic React component, make a file by the name .jsx, in which case Pascal case, and do a RFCE and add whatever you want to add whenever you will use that component. So अभी हमारे components को add करने के लिए हमारी single point of contact कौन सी है, app.jsx। ऐप को हम तो ऐप क्या करेगी, components को add करती जाएगी जितने चाहो उतने, ठीक है।